Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have discussed about endoplasmic reticulum and ribosomes. That is the cell organelles. So we will carry forward with topic that is cell organelles with a new one that is your Golgi complex. Now, what is a Golgi complex? Golgi complex looks like this one, which is parallelly arranged structures, and this is your basically transition vesicles. We will get to know the terms, what are transition vesicles, what are secretory vesicles. Now, this is the structure of a Golgi apparatus. Now, Golgi complex was discovered by Nobel laureate Camillo Golgi, or you can say it as a Camillo Golgi, in 1898, while he was examining the nerve cells of a brand owl. So, who discovered the Golgi complex? That is Camillo Golgi. Therefore, it got the name as Golgi apparatus or Golgi complex. So, Golgi complex occurs in almost all eukaryotic cells. ये basically हर एक यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है. Why it is in eukaryotic cells? Because it will have eukaryotic cells have a proper well defined nucleus, and in prokaryotes we don't have a proper well defined nucleus, and there are absence of cell organelles. Now, the Golgi complex is a specialized part of a smooth endoplasmic reticulum. What it says that basically the Golgi complex is a part of smooth endoplasmic reticulum. What is smooth endoplasmic reticulum? That it does not contain any ribosomes and it helps in the formation of lipids and fats. It is formed in plant cells. So plant cells में हम इन Golgi apparatus को या Golgi complex को dictyosomes कहते हैं because they freely distributed in it. Now, what are the functions of Golgi complex? It is primarily associated with the secretory activities of the cell. Secretions में help करता है. It packs and dispatches material synthesized near endoplasmic reticulum to various targets. Now, what it means that Golgi complex are parallelly arranged stacks. Okay, when they are parallelly arranged stacks, what it contains two phases, that is cis and trans. The cis phase will receive the entry of the substances from the ER, and then it goes to trans phase of the Golgi apparatus where it gets packaged all and dispatched from there to the target site. Now it forms cell plate during cell division. This point where you will get to know in tissues chapter. Now it plays an important role in the synthesis of cell wall and plasma membrane. क्यों? आपको पता है कि किससे बना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. सो दैट मीन्स कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है आपके लिए? लिपिड्स एंड फैट्स सिंथेसाइज कर रहे हैं. हम सब ने पढ़ा था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, वो बेसिकली लिपिड्स एंड फैट्स की बनी हुई है. सो देयरफॉर इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द वेसिकल्स रिलीज फ्रॉम गोल्गी apparatus फॉर्म लाइसोसोम्स. व्हाट आर लाइसोसोम्स अभी हम डिस्कस करेंगे. It synthesize complex sugar from simple sugar. बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्मूला आती है सिंपल शुगर से. सिंपल शुगर इज ग्लूकोज. ओके, इन ग्लूकोज से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं ताकि आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बने एंड आपकी टारगेट साइट पे जिस चीज़ की नीड है वो वहाँ पे पहुँच जाए. नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन अ वीडियो टू अंडरस्टैंड फॉर हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. Now let's have a look on a video which explains the structure and function of Golgi apparatus. Now what is an endomembrane system? ये हमने क्वेश्चन पूछा था. दैट इट फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन कनेक्टिविटी. एक मेम्ब्रेन सिस्टम दूसरे मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है इनसाइड द सेल. इट इज नोन एज endomembrane सिस्टम.
Now see, these are your parallelly arranged stacks which is known as cisternae. इन सबको हम cisternae बोलते हैं. If one face, this one face is attached to your endoplasmic reticulum, so it is known as cis phase, and then another phase is known as trans phase. See, these are parallelly arranged, so it is known as parallelly arranged stacks. Now see, this is your nucleus. This is your endoplasmic reticulum, which is a rough one. Why it is a rough one? Because it contains ribosomes over here. Now next you have smooth endoplasmic reticulum. Okay, it is in connection with the smooth endoplasmic reticulum. Therefore, it forms a two vessels are over there, secretory vessels, and lysosomes are over here, which are connected to Golgi apparatus. Now, it stores and modifies protein and lipids, packs them, and then dispatch them. मीन स्टोर भी करेगा, मॉडिफाई भी करेगा, देन उन्हें पैक भी करेगा. और डिस्पैच क्यों करेगा? क्योंकि उन्हें टारगेट साइट पे भेजना है. Now, a Golgi body or Golgi apparatus is a membrane-bound organelle identified Camillo Golgi and named after him. Because Camillo Golgi ने उसे आइडेंटिफाई किया था, इसलिए हमने उसका नाम भी Golgi apparatus रखा. Stacks of flattened membrane-bound vesicles known as cisternae function is storage, modification, and packaging of manufactured substances. I hope this is clear to you. Now we will move to our next cell organelle, that is your lysosomes. Just a minute. Now we will see our next cell organelle, that is lysosomes. Now lysosomes are dark spherical single membrane bound sacs containing several digestive enzymes. अभी हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एक पॉइंट रीड किया था, दैट इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स. सो व्हाट आर लाइसोसोम्स? Lysosomes are dark, spherical, single membrane bound sacs containing several digestive enzymes. What are digestive enzymes? When you study about digestive system, you have studied that there are some enzymes which help in digestion. Okay, so these are the digestive enzymes which help in digestion of your food, which are actually your lysosomes. Now, lysosomes are formed from Golgi complex. They are found mostly in animal cells. Now, more than 40 enzymes present in lysosomes are synthesized in rough endoplasmic reticulum. बेसिकली जो 40% से ज़्यादा एंजाइम्स हैं या 40 से ज़्यादा एंजाइम्स हैं जो आपके लाइसोसोम्स में, वो एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है. दैट मीन्स अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है कि वो प्रोटीन इन नेचर है. नाउ एंड आर ब्रॉट टू द लाइसोसोम थ्रू गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ओके, तो लेके कौन आ रहा है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स. कहाँ पे? लाइसोसोम्स के पास. सिंथेसाइज कौन कर रहा है? RER. दैट मीन्स कि वो प्रोटीनियस नेचर के हैं. मीन्स क्योंकि आपको पता है कि RER प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, तो यहाँ पे जो 40 एंजाइम से ज़्यादा एंजाइम्स हैं आपके, वो एक्चुअली प्रोटीनियस नेचर के हैं. नाउ these enzymes are capable of breakdown
ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हर तरह के सब्सटेंस ब्रेक कर सकते हैं आपका. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स? दे लाइसोसोम्स हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. व्हाट डू मीन बाय इंट्रासेलुलर डाइजेशन? इंट्रासेलुलर डाइजेशन मीन्स कि ऐसी डाइजेशन जो सेल के अंदर हो रही है, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर जो डाइजेशन है दैट इज इंट्रासेलुलर. During starvation or aging, the cell digests its own organelles through lysosomal enzymes, a process called autophagy. Now आपको पता है जब आपको भूख लगती है तो आपके पेट में क्या होता है, आपकी क्रेविंग बढ़ जाती है एंड साइड बाई साइड आपको फील होता है कि कोई आपको अंदर से खा रहा है. दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ लाइसोसोम्स. बिकॉज उस टाइम पे सेल क्या करते हैं, अपनी ही ऑर्गेनालिस को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते थे बिकॉज दे नीड सम एनर्जी टू डू वर्क. एंड एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? फूड से मिलती है. तो लाइसोसोम का फूड क्या है? सेल ऑर्गेनालिस है. तो क्या करिए, वो अपने ही ऑर्गेनालिस को डाइजेस्ट करती है. सो इट इज़ नोन एज ऑटोफेजी. एंड अपनी ही ऑर्गेनालिस को डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें एंजाइम्स चाहिए, दैट इज लाइसोसोमल एंजाइम्स. व्हेन अ सेल इज डेस्टाइन्ड टू डाई, अब ये तो आपको जब भूख लगी तब की बात है, स्टार्वेशन तब की बात है. बट एक्चुअली में क्या होता है, जब आपका सेल की डेथ हो जाती है तो ये लाइसोसोम्स एंजाइम क्या करते हैं, आपके पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं एंड से बोलते हैं ऑटोलाइसिस. ओके, सो दैट मीन्स कि अगर सपोज करो आपके सेल की किसी किसी सेल की डेथ हो गई. ओके ना, अब सेल की डेथ होने के बाद क्या होगा, सेल वो वेस्ट पड़ा है बॉडी के अंदर. अब उस सेल को खाने से क्या मिलेगी आपको? एनर्जी मिलेगी. ओके, तो क्या करेगा लाइसोसोम्स की, इसी सेल को खा जाएगा एंड उस सेल को बर्स्ट कर देगा, खत्म कर देगा. सो इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैक्स. क्यों सुसाइडल बैक्स? सुसाइड का मतलब क्या होता है? अपने आप को खाना, अपने आप की अपने अपने लाइफ को ख़त्म करना. सो क्या कर रहा है लाइसोसोम्स की, जो सेल्स ऑलरेडी मर चुके हैं या मरने वाले हैं उनको खा जाता है और एज अ सुसाइड की तरह माना जाता है. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस की. ऑटो इज अपने आप, लाइसिस की डेथ होना. ओके, सो लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स और सुसाइड बैग्स. Lysosome destroys the worn out cell organelles. Destroy the worn out cell organelles means कि जो सेल ऑर्गेनालिस खराब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, खराब टीयर हो चुकी है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है. देयरफॉर इट इज नोन एज सुसाइडल बैग्स. Lysosome destroy foreign substances entering into the cell. What are foreign substances? Which are not of your body. ऐसे substances जो आपकी बॉडी के नहीं है. लाइक सपोज आपने कोई मेडिसिन ली. ओके, वो मेडिसिन अगर आपके फेवर की नहीं है तो बॉडी क्या करेगी? उसे डाइजेस्ट कर देगी. डाइजेस्ट करेगी तो क्या होगा? एक्चुअली फॉरेन सब्सटेंस बन जाएगा. वो फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम्स करेंगे. दे अनगल्फ बैक्टीरिया. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंगल्फ क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया. तो फॉरेन बॉडी क्या हो गई? बैक्टीरिया और वायरस हो गई. ओके ना, अब हमारे पास यहाँ पे कोरोना वायरस है. अब कोरोना वायरस हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर से आया है. बाहर से आया मीन्स कि जो भी ऑर्गेनाली या जो भी सिस्टम हमारी बॉडी का नहीं है, सेल उसे फॉरेन डिक्लेयर करेगा. जब उसे फॉरेन डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा? अल्टीमेटली फॉरेन डिक्लेयर करने के बाद लाइसोसोम्स एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, एंजाइम सिक्रेट करेगा एंड देन उस फॉरेन सब्सटेंस को खा जाएगा. Now, I hope this is clear to you. What are the lysosomes and what are the functions of lysosomes? Now we will do our next cell organelle, that is mitochondria. Now, what is a mitochondria? Mito is a Greek word which contains two words, mito and chondrion. Mito means thread and chondrion means granule. मतलब थ्रेड लाइक ग्रैनुअल फॉर्म में आपके पास जो भी स्ट्रक्चर अवेलेबल है हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया. एंड सबसे पहले किसने देखा था? दैट इज कोलिकर इन 1818 मसल सेल्स. ना दे वर नेम्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, बट उसको नेम किसने दिया था? दैट इज बेंडा इन 1898. दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज ऑफ एमएमएल्स. बेसिकली ये हर एक यूकैरियोटिक सेल्स में होता है बट आरबीसीज में नहीं होता है ऑफ मैमल्स, बिकॉज आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता. और जब न्यूक्लियस नहीं है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे डीएनए भी नहीं है और वहाँ पे कोई और सेल ऑर्गेनाली अवेलेबल नहीं होगी. दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया लुक लाइक अ सॉसेज शेप्ड बॉडी. सॉसेज इज एस शेप्ड बॉडीज हैं बट अंदर से कर्व्ड हुई हुई हैं. मतलब एक एस ऊपर और एक एस नीचे, दोनों की बाउंड्री जैसे हम डबलिंग करते हैं कैलीग्राफी के टाइम पे, सेम चीज. यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सी this is your now
This is your structure of mitochondria. You can see that you have a two membrane over there, inner membrane and outer membrane. Inner membrane contains your some folds. This blue color folds is known as your cristae. This is your sausage shaped, कि आपका S shape को आपने डबल कर दिया बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ दिस इज योर cristae and then you have an outer surface and you have a matrix. This outline is known as cristae and the blue color space is known as matrix, where all the chemical reactions takes place to give you energy. Okay, so cristae are the fold which increase the surface area for the reaction and blue color is your matrix जहाँ पे reactions होंगी. Now each mitochondria is enclosed by two membranes. दो membranes होते हैं, that is inner membrane and outer membrane. Inner membrane forms irregular series of fold called cristae. Cristae increase the surface area of inner membrane for ATP generating chemical reactions. Now mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Why? Because it produces energy. It has its own DNA and it produces energy. Okay, that's why, and energy you need to perform activities. So that means it is known as energy powerhouse of the cell. कि आपको पावर कहाँ से मिलती है, लाइक आप स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन के लिए क्या चाहिए, आपको पावर चाहिए ना. पावर कहाँ से आई, आपके मीटर बॉक्स से आई. तो सेम वे में आपके सेल को कोई भी फंक्शन करना है, लाइसोसोम्स को जो भी फंक्शन करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए. और एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज योर पावर हाउस. ओके, वो किस फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज योर एटीपी जनरेट, ATP, that is your ATP. So एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट हो रही है, दैट इज योर ATP. बट जनरेट कर कौन रहा है, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. दोनों ही टर्म्स में डिफरेंस है. जनरेट कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया. बट किस फॉर्म में जनरेट कर रहा है, दैट इज योर ATP. एंड ATP इज नोन एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. A इज एडिनो, ADENOSINE, एडिनोसाइन ट्राई, TRI. Then P is a phosphate, PHOSPHATE, adenosine triphosphate. Okay. So एनर्जी करेंसी क्या है आपकी, ATP है. पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है. द इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद जेल लाइक थिंग कॉल्ड मैट्रिक्स. हमने आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन बताया, दैट इज ब्लू कलर स्पेस इज योर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम, स्मॉल राइबोसोम्स एंड सर्कुलर DNA. सी, अभी तक आपने जितनी भी ऑर्गेनालिस पढ़ी है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, किसी के पास अपना DNA नहीं था. बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA है. दैट मीन्स इट कैन डुप्लीकेट, कि वो अपनी क्वांटिटी डुप्लीकेट कर सकता है, बढ़ा सकता है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. एंड कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में. सो इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. नाउ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल सी अ वीडियो ओवर हेयर फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. जस्ट अ मिनट. Now we will see a video of mitochondria for a better understanding. वॉट इट इज सेइंग दैट हमारे पास हमेशा चिप्स का पैकेट होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ खाने के लिए होता है ताकि हमें एनर्जी मिल जाए. तो सेम वे में सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. नाउ
Basically, mitochondria supplies energy in the form of packets, and these packets are your ATP. These structures are your ATP structures. This is known as adenosine triphosphate structures. I hope this is clear. Now, what it says that the outer membrane is very porous. Porous means space available है, gap pores available है. But the inner membrane is deeply folded. You can see the blue color structure outlining with the yellow color. So these yellow colors are your inner membrane which is being folded, and these folds are known as your cristae. Okay. Now what it says that it can produce its own DNA. It can produce its own protein. वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, राइबोसोम्स अवेलेबल है. एंड राइबोसोम्स है, दैट मीन्स राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो that's why mitochondria has its own DNA and it can synthesize its own protein because of ribosomes. Okay. So what is that? So what we have studied, that is mitochondria, Golgi apparatus and lysosome. So that's all for today. Thank you and have a nice day.